I wanted to bring a sense of science and acceptance कि भाई न्यूमरोलॉजी को एक्सेप्ट करा जाए साइंस की तरह बिकॉज मेरे लिए तो मिशन है. आई कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड. आई कम फ्रॉम Fortune 50 leadership company leadership background. I come from business, first generation business background. Have I gone into the path untread and not trodden on? Because essentially India is a country of astrology. We also bond over the fact that we want, at least in my mind today, and we want Indians to be the most powerful race on earth. हम सोने की चिड़िया थे एक टाइम पे. when you see all these games of throne and you see all those fancy, look at the state of way they used to live. छोटे छोटे huts, down drudgery, they used to live in those, and हम महलों में रहते थे. The new venture that Dileep and I are getting together on is luxury watches. Pre-loved luxury watches, pre-loved luxury eyewear, pre-loved luxury pens, pre-loved luxury cars. There is no value in buying brand new real luxury products because it's too inflated a price, and there is definitely no integrity in buying fake stuff. तो मैंने बताया था कि ब्लैक कार आप यूज कर सकते हो. ब्लैक कार यूज कर सकते हो तो अरे ब्लैक कार तो लाउड नहीं है, अच्छा नहीं होता, लुक नहीं अच्छी होती. सो आई मेंशन वेरी क्लियरली कि भाई ब्लैक कार तो सारे प्रेसिडेंट्स यूज करते हैं. Every head of state uses a black car. How many people have white cars? The American president has a black car. The Russian president has a black car. The Indian president, prime minister have a black car. Which means आप कितना percentage time उस black के अंदर बिता रहे हो? 2% of your life. कुछ भी चीज को stable होने में 21 दिन लगते हैं अगर हम अपनी सोच उसकी तरफ focus करते हैं. Hi friends, I am Dileep Mehra. I am a practicing lawyer in Delhi High Court. I've been practicing law for the last 38 years. I am a second generation lawyer. My father was a judge in the Delhi High Court and then a member of the National Consumer Dispute Redressal Commission, and then he handled all of international arbitrations. I hope to be following in his footsteps as far as international arbitration is concerned. But for the last about 18 years, I've been focusing mainly on mediation work and getting the parties to settle after having seen what all waste of time and energy sometimes is caused because of litigation. And I'm here sitting with my friend Sachin S. Sharma. He's the first doctorate in numerology. He's an expert in his field and he would certainly explain the finer nuances of his expertise. I've known him for about 30 years and he's from the corporate background, but hugely analytical mind, and I've always had a lot of respect for the way he applies his mind and his knowledge for the betterment of everybody around him. I would. So thank you for your kind words, Dileep. So it's not like that, but yes, when two friends bond and they bond over conversations and they bond over issues of impact के भाई चलो कुछ important बातें करें, तो it's not usually about चलो आज पार्टी करते हैं, चलो आज खाना कहाँ खाएंगे. It's always about देश में क्या हो रहा है. It's always about numbers क्या कह रहे हैं. It's always about आगे future क्या है, why is this uncertainty which is all hitting us now. So we've had this kind of conversations forever over drinks, longish conversations. Now, the intention of getting together with Dileep and I was that I wanted to bring a sense of science and acceptance. कि भाई numerology को accept करा जाए साइंस की तरह because मेरे लिए तो mission है. But you also know very well that I come from a corporate background. I come from Fortune 50 leadership company leadership background. I come from business, first generation business background. So yes, was I able to take risks in life which nobody in my family in generations ever did? Yes. Have I gone into the path untread and not trodden on because essentially India is a country of astrology? Yes. So do I question everything today and how to place India and Indians? मेरे लिए आपके लिए we bond over philanthropy, we bond over service to mankind, service to plants, animals. We have those kind of common interests. But we also bond over the fact that we want, at least in my mind today, and we want Indians to be the most powerful race on earth. हम सोने की चिड़िया थे एक टाइम पे. when you see all these games of throne
and you see all those fancy, look at the state of way they used to live. छोटे huts, down drudgery, they used to live in those, and हम महलों में रहते थे. हमारा उस टाइम पे जो एडवांस साइंस था, जहां आप साउथ इंडिया के टेम्पल्स देखते हो, and you celebrate for all the right reasons, you celebrate Taj Mahal, but you forgot that the science behind a golden or a sun temple in Konark or the South Indian temples which were there at that time, was the science was far more, there was so much more which now आप सुनते भी हो. दुनिया बात तो करिए, लेकिन उसको put together and together करके उससे कुछ निचोड़ तो निकलना चाहिए. मेरे दिमाग में तो ये था. I found numerology as a way of empowering people. When I understood this as a science, अब यार I understand कि मैं तो क्लास 8 से ही पढ़ रहा था. छोटी छोटी किताब होती थी, शेल्डन सिस्टम की, कीरियो की किताब होती थी, इंटरनेट तो था ही नहीं. तो जो पढ़ा एक पेज वो छोटा सा बनाया, किसी के चार्ट्स लिए, वो पार्ट देखा. Who knew at that time, I'm talking about school time, that one day it will become me. But maybe that was the God's hand in play. अगर उस टाइम से न्यूमरोलॉजी सीख रहे थे या प्रैक्टिस कर रहे थे, तो एकदम से न्यूमरोलॉजिस्ट तो नहीं बने. लाइफ तो ले गई जो कन्वेंशनल लाइफ थी, जहां होटल मैनेजमेंट किया, माँ बाप डॉक्टर थे लेकिन किया तो होटल मैनेजमेंट, बिकॉज नंबर से तो समझ आ ही गया था 10th से पहले कि भाई साइंस मेरे बस की नहीं. So to be able to take that kind of a divergence in class 10th only, क्या बायोलॉजी नहीं लोगे, was my self decision. अब क्लास 10th में कितने बच्चों को पता होता है कि वो क्या करने चाहते, क्या नहीं करने चाहते. तो पहले तो मेरा मेजरेबल वहां से आया था, बिकॉज आई डिड वेरी वेरी वेल इन होटल मैनेजमेंट. आई वाज अ स्कॉलरशिप होल्डर. पूसा से हूँ, होटल मैनेजमेंट दिल्ली से हूँ, एंड a scholarship holder at that time, also top 10 में आता था. So it turned out to be nice at that decision, so to say. So first 10 years of my life was hotels, you know that. अब वहां से लेके जहां भी मैंने गया हूं, चाहे मैं सॉफ्टवेयर में गया हूं, कंसल्टिंग में गया हूं, न्यूमरोलॉजी में गया हूं, वो डिसीजन सारी न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे तो है. आई वॉज एबल टू कैलकुलेट माई टाइमिंग. और आज अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, आज जब मैं और आप जुड़े हुए हैं, बाय द वे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट द न्यू वेंचर दैट दिलीप एंड आई आर गेटिंग टुगेदर ऑन is luxury watches, pre-loved luxury watches, pre-loved luxury eyewear, pre-loved luxury pens, pre-loved luxury cars. We understand and we think that there is no value in buying brand new real luxury products because it's too inflated a price, and there is definitely no integrity in buying fake stuff just to make believe that you are indeed wearing an expensive watch. अब वहां से तो फिर अल्टीमेटली प्री लव्ड में जाओ ना, बिकॉज सेकेंड हैंड चीज थी तो कम से कम ओरिजिनल. चलो वहां से, so there's a commonness of business interest. You tell me first, before I get into numerology, what excited you to become a part of the pre-loved luxury? Because I know you as a very simple, plain, fun guy, but you are not a luxury lover per se. But how come you became a part of my venture? And I'll give you another aspect or perspective to that. Tell me. I, in fact, was wanting to ask you a question on those lines also. I got interested because I saw a lot of wannabes and a lot of people who have already reached places focusing on luxury items. Even though that did not add any value to my thinking and my outlook towards the world, but there was a certain curiosity. Okay, how does that help in improving a person? This was the positive thing. The negative thing which was in my mind was, and obviously you are an expert on that, if it is a pre-loved or a second hand or a used item, especially if it has had contact with my body and my vibrations or energies or whatever you call it, it passes on to the next person. So are there any precautions to be taken? Is it an automatic washout? Does it help me in my journey, or does it pull me down because I've taken somebody else's negativities on? So let me explain this. आप जिस सोफे पे बैठे हो ना, इस सोफे पे 100 लोग बैठ चुके हैं. तो फिर सोफे पे बैठना बंद कर दो, रेस्टोरेंट में जाना बंद कर दो, सिनेमा हॉल्स की सीट पे बैठना बंद कर दो. ऐसा नहीं होता. एनर्जी इतनी आसानी से पास ऑन नहीं होती है. फर्स्टली रिमेंबर दैट. लेट्स टॉक अबाउट कार्स फर्स्ट. ओके, एक मेरी रील थी, बिकॉज आई हैव एन इंस्टाग्राम व्हिच इज फेमस नाउ, सचिन डबल एस करके.
तो मैंने बताया था कि ब्लैक कार आप यूज कर सकते हो, ब्लैक कार यूज कर सकते हो, तो अरे ब्लैक कार तो लाउड नहीं है, अच्छा नहीं होता, लक नहीं अच्छी होती। सो आई मेंशन वेरी क्लियरली कि भाई ब्लैक कार तो सारे प्रेसिडेंट्स यूज करते हैं। Every head of state uses a black car. How many people have white cars? The American president has a black car. The Russian president has a black car. The Indian president, prime minister have a black car. Which means आप कितना percentage time उस black के अंदर बिता रहे हो? 2% of your life. So it doesn't mean that जैसे आपने black पहना suddenly some energy is going to come to you. कुछ भी चीज को स्टेबल होने में 21 दिन लगते हैं अगर हम अपनी सोच उसकी तरफ फोकस करते हैं, जिसको हम कहते हैं मंत्र अभिमंत्रण या मंत्र सिद्धि। आपने एक चीज बोली, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब 21 दिन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एक संख्या तक बोलोगे तो जाके 22वें दिन आपको आदत पड़ेगी कि आप गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग होगा, जो हर इंसान को फेल करती है क्योंकि 21 दिन कोई कर नहीं पाता। तो सबकॉन्शियस माइंड को तो इतना टाइम लगता है ट्रेन अनट्रेन होने में। आपने किसी की घड़ी पहनी, उसकी घड़ी भी पहनी, उसकी घड़ी उसने कितना टाइम पहनी थी आपको नहीं पता। द मोमेंट द घड़ी, क्योंकि आप सेकंड हैंड होती है कुछ, वो बफिंग होती है, उसमें बफिंग मीन्स उसको साफ किया जाता है, उसको सर्विसिंग किया जाता है परहैप्स। जब एक चीज बफ हो गई, चाहे वो कार है अंदर से ड्राई क्लीन होके आ गई, आपने सेकंड हैंड कार लिया, चाहे चश्मा है, जब एक चीज को बफ कर दिया उसकी एनर्जी निकाल दी जाती है। बफिंग मीन्स उसको कपड़े से साफ कर दिया जाता है। अब जब आपने कर दिया बफ तो एनर्जी गई, it's as good as new. So energy is not something that one should be afraid of. Energy exists. एनर्जी का प्रिवेंशन नहीं होता, एनर्जी का समझना होता है कि ओके चलिए कि अगर मैं क्रिमेशन में जाता हूं तो मैं वापस आके नहाता क्यों? कि मैं ऑफिस भी तो जा सकता था। ये तो ओल्ड एज विजडम है ना कि भाई नहाने, क्रिमेशन में जाने के बाद तो आपको नहाना है, वो कपड़े धोने हैं, वो कपड़े घर में भी नहीं आने चाहिए। आइडियली उसको पोटली में बांध के उसको वॉशिंग मशीन में डाल के वगैरह वगैरह। उसके पीछे लॉजिक क्या था? वो एनर्जी है, क्योंकि जहां पे आप क्रिमेशन में गए थे वहां तो रोज क्रिमेशन हो रही है और सेवरल टाइम्स हो रही है। वहां जो एस्केप्ड आत्माएं हैं जिनको मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि एक चीज जब डेथ, जस्ट टू डायग्रेस अ लिटिल, एक चीज जब इंसान मरता है तो 72 घंटे लगते हैं उसकी आत्मा को ऊपर जाने में, तभी तो चौथा किया जाता है। और जब हम उसको 2 दिन में चौथा कर देते हैं या तीसरे दिन में कर देते हैं तो होता है भाई रिश्तेदारों को वापस घर जाना है, जल्दी जल्दी कर लो। नहीं, वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्या पता उस टाइम तो आत्मा गई ना हो। बिकॉज जब आत्मा जाती है बॉडी से वो बहुत दुख में होती है कि उसको फैमिली छूट गई उसकी, तो आसपास ही मंडरा रही होती है, वो चौथे में भी बैठी होती है कई बार वो। तो उसको फिर जब पूजा की जाती है तो फिर उनको बोला जाता है अब आप जाइए अपना, उसको कहते हैं कि एंड देन जब 13वीं जो हो जाती है तो 13वीं के टाइम पे जब आप खिलाते हैं भोजन वगैरह, उसको सेलिब्रेशन कहते हैं कि भाई अब जा चुकी है अपनी जगह पे, उसको चीज को सेलिब्रेट करो और सब मिलके ब्लेस करो उस आत्मा को। दिस इज अ सिस्टम। अब उस टाइम पे जहां पे बॉडी बर्न हो रही है वहां पे तो कितनी एक्सीडेंटल आत्माएं हैं, या there could be murders, there could be so many ways the atma would have escaped. They're all up there. आप वल्नरेबल हो, लेडीज को तो जाना ही नहीं है। इट्स लाइक एज ओल्ड विजडम, प्लीज डोंट गो टू क्रिमेशन। ये सही नहीं है, ये शुरू से मना किया गया था। आजकल तो बेटियां 100% गलत है, करती हैं पेरेंट्स। 100% गलत है, बिकॉज द बॉडी इज वेरी वल्नरेबल, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर पीरियड साइकिल्स। द बॉडी इज वेरी वल्नरेबल व्हेन यू आर इन ग्रीफ, द बॉडी इज वेरी वल्नरेबल व्हेन you are guilty and grief, fear. There are so many things a woman might carry, but essentially the period cycles is the biggest issue. वो पोर्टल्स खोल देते हैं, और पोर्टल्स में जो आप लेके आओगे वहां से, क्योंकि हवा में क्या चल रहा है उस क्रिमेशन ग्राउंड में, वो आप अपने साथ लेके आ जाओगे। वो 10-10, 20-20 साल नहीं जाती, अगर जाती है एट ऑल, क्योंकि उसके लिए उसको निकालना पड़ता है। सेम थिंग फॉर चिल्ड्रन, नेवर गो टू क्रिमेशन, नेवर गो टू हॉस्पिटल टू सी पेशेंट्स। आप हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहिए लेडीज को तो, व्हेन दे गोइंग थ्रू साइकिल्स। आप मंदिर की बात करते हो, मंदिर में को मंदिर थोड़ी ना पवित्र हो जाएगा। मंदिर में भी तो लोग अपने ग्रीफ को ऑफलोड करते हैं, अपनी आस्था को, अपनी प्रॉब्लम्स को बताने आते हैं ऊपर वाले को। तो आप वहां बैठे हो तो आप तो आपके अंदर चली जाएगी वो सारी ग्रीफ की जो जितनी भी प्रेयर्स है, आप उसको उठा के ले आओगे अगर वो साइकिल चल रही है तो। सबके पीछे तो साइंस तो था ना,
वो है एनर्जी जहां से आपको बचना है। सिर्फ सिंपल घड़ी वजह से एनर्जी थोड़ी ना होती है। वो तो कहते हैं कि जब आप फॉर एग्जाम्पल, Why that doubt came in mind was because कई बार ये होता था कि अगर आपने अपनी पुरानी पहनी हुई चीज अगर देनी मैं है आपको बताता हूँ, तो सोच के दो, साफ करके अच्छी तरीके से क्लीन करके पैक Correct, करके correct. दो, उतार के मत दे दो, क्योंकि देन देयर इज अ कनेक्ट व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड। द सेम थिंग। अगर मैं अपनी शर्ट फॉर एग्जाम्पल, आज मैं कहता हूँ अपनी शर्ट किसी को दे रहा हूँ, तो मैं उसको नहा धो के ड्राई क्लीन करा के देता हूँ। तो वही तो होता है, बफिंग ही तो करते हो घड़ी पे, पहली बात। सेकेंडली, सपोज किसी की डेथ हो गई और आप उसके जूते कपड़े वगैरह बांट रहे हो, द मेथड इज कि आप जितने ज्यादा लोगों में बांटोगे उतना चलता है, ठीक है। आप एक इंसान को मत दे दो सारे, वो फिर एनर्जी बैठ जाएगी। Okay. सो इफ देयर आर 10 पेयर्स ऑफ शूज, गिव इट टू 10 पीपल, बिकॉज वो एनर्जी जूता उतना ही पहना गया था, तो वो आराम से उसकी नॉर्मल एनर्जी ऑब्जॉर्व करके हैंडल कर लेगी। This is how energy is distributed, or you're protected from the word of energy. सेकेंड हैंड प्री लव में, या कोई किसी के बेडरूम में सो रहा है, थोड़ा गेस्ट रूम आया हुआ है, तो वहां पे 4 गेस्ट आ रहे हैं और शादियां हो रही है, वहां पे लोग रह रहे हैं, उन सब से एनर्जी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स वेरी सिंपली इजिली हैंडलेबल, वो अपने आप ही निकल जाती है। So is there anybody in the world who was having a similar doubt that is clear now? So you can with a clear mind go in for these pre-loved items, especially if they were one of your fantasies that this is something I want to own, but I cannot afford the original branded version. I can get into the pre-loved arena and get into it. If there was a doubt like this, it is now clear. Yeah, see the point is बॉस, लॉजिकली तो आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, कि मेरे को भी लॉजिक लगता है यार, पैसा लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी इज द वाइफ ऑफ विष्णु जी। पैसा कहते हैं, पैसा को लेवरेज किया जाता है, पैसे को उड़ाया नहीं जाता। अगर आप एक मर्सिडीज जो है, आप 60 लाख 70 लाख की गाड़ी ले रहे हो, और आपने मर्सिडीज को शोरूम से बाहर निकाला और उसकी वैल्यू रहेगी 40 लाख रुपए, बिकॉज 30% डेप्रिसिएशन एक साथ 6 महीने में हो जाती है। अब आपने वो जो 6 महीने में 30 लाख रुपए खोए, दैट इज अ मिस, इसको कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी की तरफ एक सिन क्रिएट किया आपने। आपको मालूम है, ग्लटनी, चाहे वो ग्लटनी हो या स्पेंडिंग मनी थॉटलेसली, ये सारा सिन में आता है। जब हम जाके हर जगह पे सेल में खड़े हो जाते हैं, कपड़े ले लो, यहां से ले लो, वहां से ले लो, उसको सिन काउंट किया जाता है टुवर्ड्स लक्ष्मी जी। जब हम पिछले कदमों की बात करते हैं, कार्मिक डेट्स की बात करते हैं, जब एक कार्मिक डेट का नंबर होता है 14 नंबर होता है। 14 नंबर में क्या होता है कि आप पास्ट लाइफ में 5 चीजों से आउट ऑफ बैलेंस थे, खाने से, शुगर से, मनी स्पेंडिंग से, एडिक्शन से, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट्स रखते थे, मार दूंगा, काट दूंगा, ऐसे। ये 5 चीजें सिन गिनी जाती है, और ये सिन ऐसा है कि नेक्स्ट लाइफ में आपको उसको भुगतने के लिए आए हो। आपको या तो इन चीजों का अभाव होगा, कमी रहेगी, या फिर आप गलत कंपनी में पढ़ के फिर इन चीजों में फंस जाओ। उसमें से एक है बिना सोचे समझे लक्ष्मी खर्चना। अगर आप अपने बिजनेस को, जैसे न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी में कहता है यार, 1 फैमिली 1 न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए, कि भाई इतनी पावरफुल नॉलेज है कि इट कैन मेक अ मदर अ मच बेटर मदर, इट कैन मेक अ हस्बैंड अ मच बेटर फादर, और हस्बैंड, इट कैन एम्पावर द एंटायर लाइफ। बट आप सोचो, इसमें प्री लव में अगर आप इस बिजनेस को एक मिशन की तरह लेते, तो लक्ष्मी जी की तरफ एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट करना इज अ सिन। चलो स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ हो गई। जो आपने 100 रुपए बचाए, एक सेकेंड हैंड घड़ी लेके, या फ्रेम लेके, या पेन लेके, जो भी लेके, उसका जो 100 रुपए बचे, उसको लेवरेज भी तो कर रहे हो। उस 100 रुपए से आप एफडी डाल सकते थे, गोल्ड पे डाल सकते थे, बच्चों के लिए एफडी सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते थे। अगर आपको आदत हो हर चीज की कि मैं पहले प्री लव्ड के दुनिया में जाके चेक कर लूं वहां पे क्या मिल रहा है, वो छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके पैसे की तरफ एक पूजा ही तो है। Correct. तो अगर आप इस बिजनेस को भी पूजा की तरह लेते, तो फिर तो कहते हैं मेरे तो मिशन है कि मेरे को हर इंसान को बताना है कि भाई बिल्कुल जाके आप फ्रेश घड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप पहले एक्सप्लोर करो, या फेक घड़ी खरीदो मत, बिकॉज फेक तो चलो आपके माइंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, कि आप फेक घड़ी आपने जहां पहनी या फेक गाड़ी कुछ भी किया, आपके माइंड ने कन्विंस होगा कि मैं इसी लायक हूं, मुझे यही डिजर्व करता हूं, इसके बियॉन्ड मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आपने अपने माइंड को प्रोग्राम कर दिया, तो वो तो उसका डैमेज तो अनकैलकुलेबल है। बट अगर आपको पता है कि आप नेचुरली वाइब विद लग्जरी, अगर आप नेचुरली लग्जरी की तरफ अट्रैक्टेड हो,
and you also understand the value of Lakshmi ji. So then attach that value of Lakshmi ji to what you buy. This is called pre-loved luxury. Yeah. That sense of speaking, we want to do this business is कि यार उसमें तो बहुत सारा पैसा बच जाएगा लोगों का, और वही पैसे से आप शेयर पे डाल दो, गोल्ड पे डाल दो, लैंड खरीद लो, बच्चों के लिए कुछ कर लो, धीरे धीरे करके लग्जरी भी आपके पास है, आपका फ्यूचर भी सिक्योर है. इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है? तो आप हर चीज को या हर जो आप काम करते हो उसको एक सेंस ऑफ मिशन अटैच कर दो ना यार. मेरे लिए तो अगर काम में भी, और ये आपको चाहे मैं निम्नोलॉजी कर रहा हूं या ये कर रहा हूं, अब एक सेंस ऑफ स्पीकिंग था. हम निम्नोलॉजी की बात करते हैं. व्हाई एम आई सो कन्विंस्ड दैट निम्नोलॉजी शुड बी इन एवरी फैमिली. एक तीसरा मिशन और भी है जो मेरा आपसे साथ करना है हम लोगों ने. पहले इस पे काम 2 मिनट बात कर लेते हैं. व्हाई एम आई सो कन्विंस्ड कि भाई हर घर में निम्नोलॉजी होनी चाहिए. नाम की बात करते हैं. नाम है कार्मिक डेट्स है, मैं किस रीजन से इस दुनिया में आया हूं, मेरे मन की शांति का रास्ता क्या है, मेरे पिछले लाइफ के कर्म क्या थे, क्या ऐसा कोई बड़ा काम मेरे को मिला है कि मैं मास्टर नंबर होकर बड़ा काम करने आया हूं. ये सब निम्नोलॉजी में आता है. मेरा फ्यूचर क्या है, उसकी रेमेडीज क्या है, ये सब निम्नोलॉजी में आता है. लेकिन इंडिया में लोगों को आता नहीं है. इंडिया में लोगों को फ्यूचर कैलकुलेट करना निम्नोलॉजिस्ट्स को नहीं आता. आई एम टेलिंग यू, ये पॉडकास्ट है, नहीं आता. वो कभी वो एस्ट्रोलॉजी को जोड़ लेंगे, कभी टैरो कार्ड को जोड़ लेते हैं, कभी कुछ जोड़ लेते हैं. उनको प्योर प्ले न्यूमरोलॉजी के थ्रू प्रेडिक्शंस करना नहीं आता, विच इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर 30 इयर्स. आपको याद है, एक टाइम में मैंने बोला था कि 2019 में दिसंबर में मैंने रील डाली थी इंस्टाग्राम में. दिसंबर में या 31 दिसंबर था या 1 जनवरी, आई डोंट रिमेंबर ना. उस टाइम पे मैंने एक रील डाली थी कि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कि 2020 बहुत मेजर कैटास्ट्रोफी का साल आएगा. तो फिर कोविड आया था. उस टाइम कोविड का नाम भी नहीं जानता था कोई 1 जनवरी को. देखो चाइना में कुछ कोविड जैसी चीज शुरू हुई है, वो फरवरी में आनी शुरू हुई थी. एंड यू सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. द सेम थिंग आई सेड 2025 में, और मैं बहुत बारी रील में कह चुका हूं, इज अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ह्यूमैनिटी. एवरीथिंग विल चेंज. एंड ये जून है, जुलाई है, अभी बचा है टाइम, अभी टाइम बचा है. बहुत सफाई होनी है और अगले 2 साल होनी है. बट इसमें किस लेवल पे सफाई होनी है? आपने तो ऑलरेडी आपने देख लिया जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स कितना स्ट्रांग हो गया. आपने एक जगह पे मारा पाकिस्तान को, सिंदूर पे मारा ना आज. तो टर्की, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश सामने आ गए आपके, कि आपके असली दुश्मन तो पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, इनके पीछे टर्की, उसके पीछे चाइना का पैसा है. ये बात अब लोगों को समझ आनी शुरू हुई है. जो कहते हैं लोग अंदर, जो देश को खोखला करने की कोशिश करते हैं, करंट गवर्नमेंट की, मैं गवर्नमेंट की साइड तो नहीं लेता, लेकिन करंट गवर्नमेंट को वीक करने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब में ज्ञान बांटते हैं. वो क्या कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ द चाइनीज एंड द टर्क्स एंड द पाकिस्तानीज एंड द बांग्लादेशीज टू वीकन द कंट्री. आप 4 चीजों की पावर को हैंडल नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी पावरफुल देश हो. अब ये चेस गेम चल रहा है. वो वहां जाके साइप्रस और मिसाइल्स ग्रीस में दे रहे हैं, ताकि टर्की के बिल्कुल सामने है. वो आर्मीनिया को मिसाइल्स दे रहे हैं इंडिया, क्योंकि अजरबैजान साथ में बैठा, अजरबैजान ने टर्की यार तो कहता. सो वहां पे गेम वहां चल रहा है, यहां पे गेम यहां चल रहा है. उधर चाइना को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है. कैसे? क्वाड से. फिलीपींस को ब्रह्मोस दिया जा रहा है. फिलीपींस इज बिकमिंग बेलिजेरेंट टुवर्ड्स चाइना. फिलीपींस के पीछे जापान खड़ा है, जापान के पीछे ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के पीछे यूएस खड़ा है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीछे इंडिया खड़ा है. दिस अ चेस गेम गोइंग ऑन राइट नाउ. ये किस लेवल पे बाहर निकलेगी, किस लेवल पे लाइफ को इफेक्ट करेगी? यूक्रेन वॉर इज कंप्लीटली अबाउट नेटो अगेंस्ट बीइंग रैलीड अगेंस्ट द रशियंस एंड बेलारूस. बेलारूस रशियन साथ साथ है, बाकी तो सारे के सारे 37 कंट्रीज है. कितने कंट्रीज है नेटो के साथ? वो एक साथ है. वहां पे पोलराइजेशन हो रही है. इजराइल के अगेंस्ट पोलराइजेशन हो रही थी कि वहां पे प्रॉक्सीज जो है, ईरान के प्रॉक्सीज लड़ रहे थे. ईरान के प्रॉक्सीज कौन थे? लेबनान है, सीरिया है, हमास है, हजबुल्ला है, ऑल ऑफ दैट व्हिच वर प्रॉक्सीज ऑफ ईरान. सो ईरान इज ट्राइंग टू बिकम अ पॉपुलर कंट्री. किस एरिना में? वर्ल्ड एरिना में नहीं इंटरेस्ट है उनको कुछ. उनको ओआईसी, और वो को कहते हैं उसको इस्लामिक कंट्रीज का एक कुछ ग्रुप होता है. वहां पे 3 लोग लड़ रहे हैं सुप्रीमेसी के लिए. एक ईरान है जिसके प्रॉक्सीज ये सब है, एक सऊदी है जिसके पास ऑयल है, ईरान के पास ऑयल है लेकिन इसका सैंक्शंस में फंसा हुआ है, और एक टर्की है.
तो टर्की जी जो यहां लगे हुए हैं ना पीछे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गरीब लोगों के पीछे, ये इंडिया के अगेंस्ट नहीं लड़ रहा, ये इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन ईरान और सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फंस तो इंडिया रहा है ना, बिकॉज अभी लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप इज सो स्ट्रॉन्ग राइट नाउ इंडिया में, मार्केट भी यहीं पे है, जीडीपी भी यहीं पे है, ग्रोथ भी यहीं पे है, एट द एंड ऑफ द डे जॉब्स है, सब कुछ यहीं पे है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज बीन एबल टू होल्ड ऑल दिस बैक, अदरवाइज तो इधर तो घुस चुके होते लद्दाख में, कब के घुस गए, Correct. कब के घुस गए होते। They would have taken Ladakh, they would have entered Arunachal 10 years, 6 years ago. ये तो बचे हुए हैं because of our central leadership. So this is a very, very volatile year. Make no mistake about it. There's no romanticism about saying, oh, वो तो साहब ने उसने ये नहीं किया, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर खराब है। गुरुजी, आपकी सर्वाइवल इज एट स्टेक. Make no mistake about it. ये वो टाइम है where you need to empower the country. अब मेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ निम्नोलॉजी कर सकता हूँ। मैं निम्नोलॉजी को one family, one निम्नोलॉजी में बचा सकता हूँ। So that everybody understands themselves, everybody understands कि उनका वजूद क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, उनके कर्म क्या है, उनके कर्म के दोष क्या है, उनकी डेस्टिनी क्या है, उनका पाथ टू इनर पीस क्या है, उनका नाम सही है कि नहीं है। एक इंसान को समझ आएगा, एक फैमिली को समझ आएगा, वो किसी को पढ़ाएगा। मेरे पास किताबें भी हैं, ऑटोमेटेड कोर्स भी है, अब जितना फैला सकते थे फैला दिया। Just to understand this about numerology, you said using numerology you had made a certain prediction. So it is a very good tool to make predictions and maybe to understand what a person is going through today. That because of these numbers, this is what you're going through. But then you were also mentioning karmic debt and something which flows over from past lives. Is that also possible to study just using numerology? Yeah. And how is that then altered or maybe buffered down or whatever? नहीं, एक पॉइंट था where I was just trying to align, जैसे मैंने कहा था ना, पीरियड ऑफ लग्जरी का काम मैं लक्ष्मी जी की पूजा के हिसाब से करता हूँ, करना चाह रहा हूँ, नॉट बिकॉज इट्स फैशनेबल टू डू सो और इट्स मनी मेकिंग टू डू सो। अगर आप विशन बेसिंग के साथ कुछ करते हो तो शायद कुछ अलग कर पाओगे। When I started doing न्यूमरोलॉजी की दुनिया में पैर रखा था, it was 2010, आज 2015 25 है। उस टाइम पे तो वो लोग आते थे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जो एस्ट्रोलॉजर से दुखी होके आए होते थे कि जी पूजा बेच दी और स्टोन बेच दी या कुछ हुआ नहीं, तो आप तो उस टाइम प्रोफाइल हमारा वो था, या जो सब कुछ ट्राई करना चाह रहे हो। नहीं प्रोफाइल ये था कि लास्ट रिजॉर्ट है। Okay. It was never a priority profile and it took me a decade to get there. उस टाइम पे चलो इतना इंटरनेट नहीं था, इतना कुछ नहीं था, तो द स्पीड ऑफ प्रोग्रेस वाज स्लो, बट मिशन तो था। मिशन जो मैं आपको भी बोल रहा था कि मैं मेरे हिसाब से तो अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ एट अ फैमिली लेवल। न्यूमरोलॉजी वो करती है, उसमें कार्मिक डेट 100% आता है। कार्मिक डेट्स कभी वो 13 नंबर होता है जो पैसे का काम कर्म का दोष होता है, 16 नंबर रिलेशनशिप का होता है, 19 नंबर डिक्टेटरशिप का होता है, और 14 नंबर होता है आउट ऑफ बैलेंस इंसान, अयाश, आउट ऑफ बैलेंस काइंड ऑफ। ये अलग अलग कर्म के दोष के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। 13 नंबर में कोर्ट केस आ जाता है, 14 नंबर में मेमोरी वीक हो जाती है, 16 नंबर में आपका ब्रीदिंग एपरेटस वीक हो जाता है, सारा साइनस, थायराइड, विंड पाइप, लंग्स, ये सारा लंग्स, ये सारा एरिया वीक हो जाता है, एंड 19 नंबर में हार्ट और डायबिटीज आ जाती है। नाउ ये सब कुछ न्यूमरोलॉजी में है। मेरा पॉइंट ये था कि कुछ भी करो तो एक सेंस ऑफ मिशन के साथ करो तो क्वालिटी तो अपने आप आएगी। Unfortunately, especially so in the world of numerology, a lot of fake and fraud is happening. A lot of fake and fraud, जो किताब में पढ़ा, जो वेबसाइट पे पढ़ा, जोड़ दिया, वो यहां से वैदिक उठा लो, यहां से शेल्डन उठा लो, वहां से 4 पन्ने पाइथागोरस के उठा लो, एक कहानी बना के 6 महीने का कोर्स बनाना और पढ़ाना अलग बात है, और प्रेडिक्शंस करना और अपना नेक्स्ट स्टिक आउट करना रोज, जहां पे किसी के पैसे लगे हुए हैं, जहां पे किसी की कंपनी बंद हो जाएगी, जहां पे किसी को जेल जाना पड़ रहा है, जहां पे किसी की नौकरी जा रही है, वहां ये बता पाना कि होगा कि नहीं होगा, और रोज करना ये बात, वो भी महीनों नहीं सालों से करना, वो अलग है न्यूमरोलॉजी। सो आपको जब मैं रील्स बनाता था पहले शुरू में, आई यूज्ड टू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि क्या बोल रहे हैं रील्स में, कैसी बातें कर रहे हैं। तो आई यूज्ड टू से भाई हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, उससे पूछ ले भाई तेरे को फ्यूचर कैलकुलेट करना आता है कि नहीं, बस ये सिखा, बता दे कि तेरे फ्यूचर कैसे कैलकुलेट करते, नहीं आता तो तू न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं, तो फिर थ्योरी पढ़ा रहा है। उसको ये बता दे कर्म के दोष तेरे को पता है, और कर्म के दोष कहां हिट करते हैं, किस तरह से हिट करते हैं, और मेरे चार्ट में कब हिट करने वाला, ये बताते बस। वो सच हो जाएगा तो तेरे को आता है। कर्म के दोष ही नहीं आते लोगों को, कर्म के दोष कैलकुलेट करना नहीं आता,
बिकॉज कर्म के दोष फ्यूचर चार्ट्स में भी दिखते हैं और फ्यूचर कैलकुलेट करना ही नहीं आता। आप आए इस दुनिया में चार रीजंस के लिए हो कि उनमें से एक है कर्म का दोष पूरा करने के लिए। आपको यही नहीं पता आपके चार्ट्स में कर्म का दोष है कहां। एंड फंडामेंटल क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में तो पता होता है, क्लियरली पता होता है कि ये पितृ दोष है, ये काल सर्प योग है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, कि ये सब दोष होते हैं। तो पता है कि इसका निवारण ऐसे होगा, कहां पे तंग करेगा, ये एस्ट्रोलॉजिकली एक्यूरेट है डाउन टू द लास्ट डे, इट्स देयर ना। तो न्यूमरोलॉजी में बात क्यों नहीं करते? क्या वो इंसान की लाइफ बदल गई क्या? बात ही नहीं करते, बात ही नहीं करते क्योंकि करना नहीं आता। और जिसको बात करते हैं उसको फ्यूचर कैलकुलेट करना नहीं आता, तो उसको यही नहीं बता सकता कि वो आपका 16 नंबर है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ 16 होगा। भाई साहब, डेट ऑफ बर्थ 16 नहीं होता, साल भी 16 आता है। जब साल 16 आता है तो अपने ही धोखा दे जाते हैं। साल कैलकुलेट कैसे करते हैं? 7 नंबर नहीं होता भाई साहब, वो 16/7 नंबर होता है। उससे पहले एक और टाइम साइकिल होती है, उससे पहले एक और टाइम साइकिल होती है, उससे पहले 36 साल में एक और टाइम साइकिल शुरू होती है, फिर 25, 36, 42, 46, 50, 60, 70, 60, 90, इतनी टाइम साइकिल्स में आपके सारे प्लैनेट्स बदलते हैं। इस हर जगह पे कहां पे कर्म का दोष आएगा आपको पता होना चाहिए, वरना आप गाइड कैसे करोगे? और अगर आपने अपने क्लाइंट को गाइड नहीं किया इन सब चीजों के बारे में, यू डिड अ डिससर्विस टू योर क्लाइंट। आपने उसको ये कह के भेज दिया सब कुछ ठीक होगा, ये स्टोन पहना दिया, ये क्रिस्टल पहना दिए, कुछ घोड़े भी दे देते हैं आजकल, ये लीजिए हरे रंग का घोड़ा रख लो अपने पास, तो नहीं क्या क्या करते हैं, घड़ियां पहना देते हैं, ये घड़ियां पहन लो, ये स्ट्रैप पहन लो, ये चारा खिला दो। गुरुजी, पहले फ्यूचर कैलकुलेट करना सीखो, तो पास्ट की लाइफ पता चलेगी, बिकॉज ये दोनों कनेक्टेड है। हमारा बॉडी इज पेरिशेबल, बट द सबकॉन्शियस इज नॉट, द सोल इज नॉट। द सोल इज कैरिंग, जो सोल जर्नी में इस लाइफ में आया है वो आपके यहां पे सबकॉन्शियस माइंड में सारी फाइल्स बिठा के आया है। आपकी सोल की जितनी भी जर्नी रह चुकी है पिछली हजारों सालों में, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फाइल बन के आती है, लाइफ बाय लाइफ बाय लाइफ, ह्यूमन लाइफ टू ह्यूमन लाइफ टू ह्यूमन लाइफ। आपको ये फाइलें खोलनी पड़ती हैं देखने के लिए कि क्या चल रहा है। आपको ये सब कुछ कॉन्वर्सेशन है ही नहीं आपके बारे में, आपको पता ही नहीं इन सब चीजों के बारे में, आप क्या बात कर रहे हो? आप मिसगाइड कर रहे हो। करेक्ट। And you're only using social media, the power of social media, to just make yourself popular. That's all you're doing, nothing else. So for me, this is the mission. Why one family, one numerologist? तो ये भी मिशन से तो चल रहा है, तो चल तो रहा है आराम से। हम तो सुबह से लेकर रात तक काम करने वाले लोग हैं, बिकॉज आपकी जनरेशन मेरी जनरेशन तो ऐसी थी, हमें सिर्फ काम करना आता था, हम तो काम करते। दूसरा, अब तीसरा मिशन क्या था जो मैं आपको, विच इज व्हाट आई वांटेड टू मे बी कंक्लूड आवर कन्वर्सेशन आल्सो, कि कुछ तो आगे भी तो करना है ना यार। अब वी आर इन अवर प्राइम यूथ में, और अब हम आप यंगेस्ट अपने फ्रेम ऑफ माइंड में चल रहे हैं, तो फिर जाते जाते कुछ तो करके जाएंगे ना सर। मेरे लिए इस देश को, आई वांट टू मेक इंडियंस द मोस्ट पॉपुलस मिलियनेयर्स की पॉपुलेशन। मुझे सारे इंडियंस को मिलियनेयर बनाना है। अब मैं कितना बना पाता हूं अलग बात है, मेरी लाइफ ऊपर वाले ने कितनी दी है वो अलग बात है, लेकिन मुझे हर इंडियन को मिलियनेयर बनाना है। पैसा बोलता है, पावर वही देता है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्पिरिचुअलिज्म, हमारे पास सब कुछ हमारी धरोहर में है। वी आर स्पिरिचुअल, वी आर फैमिली ओरिएंटेड पीपल, we are not aggressors, we are peace loving people, we are highly intelligent people, we score the maximum in any country that we go, and we are higher integrated in that sense of speaking, that we are not that सुबह से शाम तक सिर्फ किसी का गला ही काटते रहो, वैसे है ही नहीं। बस एक ही चीज रह गई थी, पैसा। अगर वी वर मोस्ट रिचेस्ट कंट्री ऑल्सो इन द वर्ल्ड, तो फिर बात ही कुछ और थी, बिकॉज सॉफ्ट पावर इंडिया की समझ तो आने लग गई है लोगों को। कहीं पे वैक्सीन जा रही हैं, कहीं पे अगर अब कोई कैटास्ट्रोफी हो रही है तो इंडियन शिप जाके रेस्क्यू कर रही है, चाहे वो इंडियंस को कर रही है या बाहर के कंट्रीज को, और कोई नहीं कर रहा, इंडियंस कर रहे हैं। कहीं पे योगा सिखाया जा रहा है, कहीं पे कन्वर्जन इस्कॉन कर रहे हैं, अब इंडियंस, और कहीं पे एजुकेशन के नाम पे भी देयर इज द बेस्ट डॉक्टर्स आर इन द यूएस। इंडियंस की सॉफ्ट पावर तो समझ आ गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियंस की मिलिट्री पावर भी समझ आने लग गई है। वी आर अ मिसाइल मेकिंग कंट्री, वी आर नॉट प्लेइंग इन 5 arenas, वी आर प्लेइंग द militarily. We are on the land, we are in the sea, we are in the air, we are in the space, we are in the cyberspace. Yes. We have the ability to fight 5 wars, and we are the most populous country in the world. And
It still continues and we are still growing in terms of numbers of people. अगर ये सब कुछ है तो एक ही चीज तो मिसिंग थी कि पैसा सबके पास होता तो सारा का सारा निम्नोलॉजी का जो मेरा सेकंड चैनल है उसको ना कहते हैं सचिन शर्मा global.com मेरी वेबसाइट है सचिन शर्मा global.com SSCHINNS शर्मा वहां पे भी है मेंटरिंग बिजनेस वालों को कैसे मेंटर करना है और करियर को कैसे मेंटर करना है ताकि पैसा जोड़ो पैसा बनाओ पैसा लेवरेज करो पैसा कंपाउंड करो पैसा बढ़ाओ वहां पे वो सब कुछ है in the Instagram there are tricks and of the trade of how to retain money how to make money how to leverage money and nowhere you will find in this conversation किसी का गला काट के पैसा बना रहे हो कोई झूठ बोल के पैसा बना रहे हो कोई ओवरसेल करके पैसा बना रहे हो तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में where I am there or my website is there it is always about planets को अलाइन करो अपने एफर्ट्स को राइट टाइम एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम डू द राइट थिंग जहां पे आपका राइट एक्शन आ गया जहां पे आपके प्लैनेट्स अलाइन हो गए यू आर लकी एक बचपन में हमारी बुजुर्ग दादी उनके फ्रेंड्स कजन्स एक चीज बोलते थे कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलेगा हाउ डज दैट कोरिलेट टू व्हाट फैक्ट ऑफ द मैटर इज उनको ना किस्मत कैलकुलेट करनी नहीं आती थी कि कब आ रहा है वो उनको वक्त कैलकुलेट एज ओल्ड विजडम से बोल रहे थे उनको वक्त कैलकुलेट करने रहते कब आ रहा है अगर आपको वक्त पता होगा तो उस टाइम पे आप पता लगा सकते हो कि इस टाइम पे कर तो लूं अब पता होता क्या वक्त से पहले की बात मैं बता रहा हूं आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखना बिकॉज यू कम फ्रॉम वेरी एक्सपोज्ड एनसीआर में पढ़े एंड फादर वाज अ वेरी रिनाउंड जज आपकी एलिटिस्ट कॉन्वर्सेशंस हैं सब इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की मेंबरशिप्स हैं आप ना उस माहौल में पढ़े हो और बड़े हुए हो अब आप पीछे मुड़ के देखो कितनी बारी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हैं जहां बहुत बड़ा काम कर सकते थे और नहीं किया वक्त तो आया था किस्मत भी आई थी लेकिन आपके अंदर फियर था और आपके अंदर आपके प्लैनेट्स अलाइन नहीं थे माइंड प्योर नहीं था माइंड स्ट्रांग नहीं था आप उसको जाने दिया न्यूमरोलॉजी वो कराती है वक्त को पढ़ना वो सब ठीक है बट आपको स्ट्रांग एंड अलाइन कराना वो न्यूमरोलॉजी कराती है इसलिए तो मैं मिलियनेयर्स बनाना चाहता हूं सबको मुझे पता है कैसे कर सकते हैं हम Got it. And one more point which just popped up. Astrology, you say, is a well-established study in India and it's quite accurate. Not 100% accurate, that also has its fallacies, but it is very accurate. Very accurate. And similarly, in the Western world, there were other studies about those sun signs and moon signs and love signs and all that. As a kid, we used to have fantasies or, those fancy books and all that which used to come के पढ़ें कि opposite gender को impress कर सकेंगे कि हमने ये चीज पढ़ रखी है. Now, so therefore, there were two different systems. Were they reconciled and similar? And the numerology which you are studying or researching on and now becoming a specialist of, are there a similar type of numerology existing in different parts of the world, Yeah. having a different method of calculation? Yeah. Kabbalah system is a Jewish system of numerology. Okay. Western numerology is Pythagoras system of numerology. The Egyptian and other sciences was Chaldean system of numerology. Then there is a Vedic numerology. There is a Hindu Ganit Shastra. And they are all equally good. They are all reaching the same path. The path to each numerology is the human being who is suffering or is undergoing that experience. And also astrology में Vedic astrology भी है, रावण संहिता भी है, लाल किताब अमृत भी तो है. तो ये पाथ तो आपका एंड ऑब्जेक्टिव तो वो इंसान को ठीक करना है. रास्ते अलग अलग है, आप जो रास्ता पकड़ लो उसको स्पेशलाइज कर लो. बिना स्पेशलाइज करे अपने आप को क्लेम मत करो आप स्पेशलिस्ट हो. कलयुग है, कर्म क्रिएट कर रहे हो, कभी ना कभी तो दरवाजा खटखटाएगा, कर्म आएगा तो सही वापस. But then your point is कि चाहे आप दूसरे के लिए नहीं करो, कम से कम अपने लिए तो आप ठीक तरीके से फैमिली बाय फैमिली एक फैमिली को समझ आ गया ना पूरी फैमिली बदल जाती है. पूरी फैमिली बदलेगी मोहल्ला बदलेगा शहर बदलेगा. और ऐसा होता नहीं है क्योंकि इंटरनेट है, एक साथ बहुत सारी फैमिली को समझ आ जाता है. जब मैं कहता हूँ ऑटोमेटेड कोर्स कर लो यार, मेरा अपने आप 1 साल पढ़ लेना है तो सिर्फ 12-15 घंटे का कोर्स 1 साल आपके लिए पढ़ा है तो वो एक थोड़ी ना पढ़ रहा है, वो तो हजारों एक साथ पढ़ रहे हैं. So today, if you harness technology and if you harness the knowledge part of it and you give it a sense of high integrity, you may have something to offer to the world. The different formats of numerology or astrology are equally good, or maybe one is slightly better than the other, but until you become an expert, you can't properly predict. Can we
right now have a live example of something which you could Yeah, so let's say give me the guidance. मेन चीज जो हम बात कर रहे थे ना, कार्मिक डेट्स की बात कर रहे थे, वैसे चलो भाई एक 13 नंबर कार्मिक डेट होता है। Karmic debt, yes. 13 नंबर कार्मिक डेट होता है, 13 नंबर डेट ऑफ बर्थ में भी होता है। डेट ऑफ बर्थ है, देन अगर आप डेट मंथ ईयर ऐड करो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा यू नो माय कार्मिक डेट इज नॉट देयर, बट डेट मंथ ईयर ऐड करने का क्या मतलब है? 11th बॉर्न, 11th को आप रिड्यूस करते हो 2 हो जाता है, अप्रैल बॉर्न 4 को आप रिड्यूस करते हो 4 रहता है, एंड मेरा जो ईयर ऑफ बर्थ है उसको रिड्यूस करो तो 3 हो जाता है। अब 4 + 3 + 1 8। जब ये डेट प्लस मंथ प्लस ईयर कहते हैं ना, उसको लाइफ पाथ कहते हैं। मेरा स्टार्टिंग जर्नी ये थी, Okay. और मेरा पूरा पोटेंशियल ये है जहां पे डेट मंथ ईयर एंड होता है कि ये मैं गाय हूं जिसको एक खूंटे से बांधा हुआ है, और जहां से ये गाय पूरा चारा चलेगी वो आपका लाइफ पाथ है। इसके बियॉन्ड आपका इस लाइफ का पोटेंशियल खत्म हो जाता है। तो पहले जहां पोटेंशियल समझ आया, अब इस पूरे जर्नी में आपको ये जर्नी ऊपर से मिली, आप एक पॉइंट इन टाइम पे पैदा हुए, तो अब आपके लिए ये पूरी जर्नी एक रास्ता मिल गया कि जी आप यहां पैदा होंगे, यहां खत्म होंगे, और इसके बीच में ये रास्ता रहेगा। अब आपके ऊपर फ्री विल है, फ्री विल है कि आप इस पे चलो या ना चलो। आदमी भटकता भी है, आपके इस पॉइंट पे चलो आया कि भाई आप ना 23 साल की उम्र में डाइवोर्स होगा या एक्सीडेंट होगा, कुछ भी लिख लो। अब वहां तक तो कैलकुलेशन चल रही थी कि यार ये हुआ कैसे, ये तो डाइवोर्स का नंबर है, ये कैसे आया? अब डाइवोर्स कहां से आता है? 16 नंबर से आता है। सो नॉट एवरीबडी बॉर्न ऑन द 16 विल हैव अ डाइवोर्स, बट एवरीबडी बॉर्न ऑन द 16 विल बी मिसअंडरस्टूड। को कर्म का दोष है, वो अपने रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टूड रहेंगे ही रहेंगे। एक तो डेट ऑफ बर्थ डिसएडवांटेज करता है, लेकिन सपोज आपका 16 नंबर साल में आ गया या एक पीरियड आ गया ऐसा कि सॉरी नाम में आ गया। अब जब नाम में 16 नंबर आ गया, जितना पुराना वो नाम करते जाओगे उतना तो मंत्र की तरह बैठता जाएगा। बस नाम तो साउंड है, साउंड में फ्रीक्वेंसीज होती है, फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ होती है, वो हमारी बॉडी पे सचिन 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 करते 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 सालों साल बैठती जाएगी। मंत्र अभी मंत्रित होता जाएगा। हमारे अंदर 73% वाटर होता है बॉडी कॉम्पोजिशन में। वो जो फ्रीक्वेंसीज है वो हिट करती रहेंगी, हिट करती रहेंगी, हिट करती रहेंगी, जैसे जैसे नाम बोला जाएगा। और वो हिट कहां करेंगी? 7 नंबर है तो वो कहां हिट करेगी? साइनस, थायराइड, विंड पाइप, लंग्स। ये एरिया हमेशा खांसी से रहेगा, ठंड पकड़ी जाएगी, बिकॉज एक कर्म के दोष का नंबर है। अब 16 नंबर ने आपको यहां हिट कर दिया, नाम में था, नाम आपने कभी चेंज ही नहीं किया, तो जो प्रॉब्लम 10 साल में बच्चे को खांसी होती थी, अस्थमा होता था और सिम्टोमेटिक एस्थमेटिक होता था, होगा तो सही, वो प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग रहेगी। हर सर्दी के टाइम में उसका छाती पकड़ी जाएगी, कंजेशन हो जाएगा। 16 नंबर इज एक्टिंग नाउ। अब ये हो गया, नाम के अंदर ये मंत्र आ गया तो बढ़ता जाएगा और खत्म कभी नहीं होगा। तो ये तो डेंजर पार्ट यही हो गया कि यार इसमें तो रिलेशनशिप भी जा रहा है, इसमें तो मेरा लंग्स जा रही है। और वही इंसान ने अगर रेमेडी नहीं करी तो ओल्ड एज में तो निमोनिया पैचेस हो जाते हैं। सर्दियां में निमोनिया के पैचेस होंगे, लंग की कैपेसिटी ब्रीदिंग की कम होती जाएगी। और आपके इस 16 नंबर के कर्म के दोष से, जो आपके सिर्फ नाम में था, डेट ऑफ बर्थ में था ही नहीं, तो कभी पकड़ा ही नहीं गया, बिकॉज आपके हिसाब से तो 16 नंबर डेट ऑफ बर्थ में होता है जो कर्म का दोष होता है। कर्म का दोष 10 जगह और दिखता है। आपके नाम वाले 16 नंबर ने, जिसने आपको पता ही नहीं था कि नाम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसने आपकी लाइफ स्पैन कम कर दी, आप जल्दी मर गए। इतनी बड़ी चीज होती है कार्मिक डेट्स, और लोगों को कैलकुलेट नहीं करना आता और गलत सिखाते हैं। A lot of times, don't you see, the doctors कहते हैं जी सब कुछ बॉडी में तो सब कुछ ठीक है, समझ नहीं, कैंसर क्यों नहीं मिला? कहीं पूछा कि कैंसर का इलाज क्यों नहीं मिलता? भाई क्योंकि कैंसर कर्म के दोष से आता है, सैटर्न के इफेक्ट से आता है। कौन सा डॉक्टर कर्म के दोष समझता है? वी हैव स्पेंट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू फाइंड द क्योर फॉर कैंसर। कैंसर इज क्या? कैंसर इज, अब आपके पेट खराब है फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से, पेट के पीछे कौन सा प्लेनेट तंग करता है? स्टमक इज जहां पे फियर हो, जहां इंसान डर से रहता हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जी इज द सेफ्टी फॉर इट। बट ये एरिया, नेवल एरिया इज योर स्टमक। कहते ना फायर इन द बेली, एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। स्टमक इज द कॉज ऑफ 30% हेल्थ इश्यूज एज पर WHO। एज पर WHO, स्टमक इज अ जनरेशन ऑफ कैंसर। 30 बॉर्न पीपल गैस से प्रॉब्लम आती है। 12th, 21st, 30th बॉर्न पीपल
30 बॉन्ड नेम नंबर्स गैस की प्रॉब्लम देते हैं। नॉर्मल है, गैस है, ठीक है, आप अपना जेड पहन लो, कुछ भी पहन लो, कुछ तरीका होता है, अपना खाना वॉच कर लो, मेनी वेज ऑफ क्योरिंग अ गैस इन द स्टमक, बट होती तो है। अब इस चार्ट में, जो चार्ट फ्यूचर के चार्ट में आपका 13 नंबर या 19 नंबर आ गया, तो 19 नंबर है सन। सन तो बहुत हॉट प्लैनेट है। वो कहते हैं ना, सन जो बाहर, आप जो इंसान सारा टाइम धूप में काम करता है, धूप में काम करता है, धूप में काम करता है, सन में काम करता है, उसको स्किन कैंसर नहीं हो जाता, उसका स्किन बर्न नहीं हो जाता। तो डॉक्टर कहते हैं कि यार ये मजदूरों को, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल टू स्किन डिजीज। एक होता है डिजीज, एक होता है डिजीज का एक्सट्रापोलेशन, मतलब डिजीज बहुत मेनी टाइम्स खराब वो तब होती है जब कर्म के दोष होते हैं। 19 हर एक 19 वाला थोड़ी ना इसको, अब 19 कर्म का दोष है जहां पे बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वो डेट ऑफ बर्थ में जरूरी नहीं है, वो डेट मंथ ईयर में भी तो आ सकता है। व्हेन यू रिड्यूस एवरीथिंग, इट जस्ट मे ऐड अप टू 19, इट मे ऐड अप टू 19 एज अ फर्स्ट नेम नंबर, it may add up to 19 in the full name number, it may even add up to 19 in a yearly number। जहां पे 19 नंबर आया और आपका पेट हमेशा खराब रहता है या गैस रहती है, वो टॉक्सिक हो जाएगी गैस। जैसे जैसे टॉक्सिक गैस होगी, एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी बढ़ेगी तो कहां चढ़ेगी? सर पे चढ़ेगी, हेडेक्स, माइग्रेन शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे यही एसिडिटी 30, 40, 50s में आके सेटल होनी शुरू होगी, जोड़ों में ये आर्थराइटिस क्रिएट कर देती है। तो अगर आप आर्थराइटिस हो रही है एक 19 और कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 19 से आपका स्टमक डैमेज हो रहा है, सारा गेम वहां चल रहा है, तो किस लेवल पे, कहां जाके आपने, उसके ऊपर से आपने एनर्जी पकड़ी हुई है, कहीं से जादू टोना कहीं से उठाया हुआ है, या कई जगह पे क्रिमिशन में घूम रहे हो, इतने सारे कॉम्बिनेशंस होके फिर एक कैंसर का सेल बनता है, तभी तो पकड़ा नहीं जाता। किसी को पता ही नहीं है, कोई सोचता ही नहीं है इस चीजों के बारे में, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीटली एक्सेप्ट दिस एज अ साइंस। आप इस साइंस को एक्सेप्ट ही नहीं करते। साइंस का, इस न्यूरोलॉजी का एक्सेप्टेबल है? इट्स नॉट। द अदर डे वी वर डूइंग अ पॉडकास्ट विद अ ग्रेट फ्रेंड, द जज फ्रॉम द मिस्टर राज अग्रवाल साहब, तो वो भी तो ये कहते हैं यार, ये आपकी इतनी बड़ी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, इसको साइंस एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता? साइंस एक्सेप्ट करते तो रिसर्च निकलती, रिसर्च डॉलर्स मिलते इसमें भी, इसको जोड़ो, उसको जोड़ो, उसको जोड़ो, इतनी बड़ी मार्केट पड़ी हुई है, एआई अवेलेबल है, मशीन लर्निंग अवेलेबल है, इसको साइंस लो तो सही। So they have occult sciences courses going all over in the क्या Western फर्क पड़ता है universities। सर? आपका साइंस एक्सेप्ट नहीं करते ना। हाँ, क्योंकि अभी अवेयरनेस ही नहीं है शायद इस चीज की। The point is that, अपना format but that's बदल- exactly the point, one family one immunologist। घूम फिर के बात तो वही आ जाती है ना सारी। अवेयरनेस ही नहीं है तो फ्रॉड आ रहा है, अवेयरनेस नहीं तो गलत सिखाया जा रहा है। करेक्ट। तो प्रॉब्लम वहां नहीं कि अवेयरनेस नहीं है, प्रॉब्लम वहां नहीं है उसका फायदा उठा के गलत सिखाया जा रहा है। दैट्स अल्ट्रा डेंजरस, बिकॉज आप प्लैनेट्स के साथ खेल रहे हो। अब प्लैनेट से जिंदगी लोगों की, 16 नंबर आपकी ब्रीदिंग सिस्टम को कम कर रहा है। ब्रीदिंग सिस्टम कम करने का मतलब है आप बुढ़ापे में खांसते मरोगे। दिस इज हाउ सीरियस दिस कॉन्वर्सेशन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि न्यूमरोलॉजी का मतलब तो मिशन है, एक विजन है, मिशन है, एंड इट जस्ट गोज ऑन। मेरे आपकी कॉन्वर्सेशन तो चलती रहेगी, बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, लाइक अ सेट के 13 नंबर है, 16 नंबर है, 14 नंबर है, 19 नंबर है, जहां नॉर्मल चार्ट में कमी नजर आई और वहां पे वही छोटी सी प्रॉब्लम हेल्थ की या रिलेशनशिप की या पैसे की, उसमें कर्म का दोष भी है, तो वो हर चीज बढ़ जाती है। तो अगर आप, एंड दूसरी बात, जब कार्मिक डेट्स होते थे, इट डजंट अलाउ इस लाइफ के प्लैनेट्स टू वर्क, वो काम नहीं करने देते। सो यू गो टू अ लॉट ऑफ, आप जाएंगे पंडित जी के पास, जाएंगे न्यूरोलॉजिस्ट के पास, जाएंगे कि साहब बहुत बढ़िया टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है, लेकिन मेरा टाइम तो ऐसा नहीं चल रहा। मैं तो जहां जाता हूं मुझे बोला जाता है आपका टाइम तो बहुत अच्छा है, तो राजयोग है। और राजयोग तो बड़ी आसानी से बोला जाता है आज की तारीख में। राजयोग अपने में लाखों में से एक को मिलता है, नहीं या तो हर सेकंड पर्सन के पास राजयोग है, क्योंकि इंटरनेट तो बोल रहा है आपके ये नंबर है तो आप राजा ही राजा हो, तो सारा तो देश ही राजाओं का भरा हुआ है। वैसे वो राजा साइकिल में जा रहे हैं, अलग बात है। दिस इज द रॉन्ग पार्ट ऑफ इट। Don't give aspirations to people when you don't know what you're talking about, because at the end of the day, राजयोग कैलकुलेट कैसे करते हैं आपको आता ही नहीं। And what is pulling it down, even if it is there, all these karmic नहीं doshas सर, and all my humble comment on this is it is destroying lives. that. Yeah. I'll give you an example. If you are born on the 1st, सन की पावर से पैदा हो, 1 तारीख को, 10th को, 19th को, 28th को आप पैदा हुए हो, और आपका डेट ऑफ बर्थ
सॉरी आपका नाम 9 पे ऐड करके ना, आपका फुल नेम 9 पे आ रहा है, चाहे वो 9 से आ रहा हो या 18 से आ रहा हो या 27 से आ रहा हो, Okay. वो 9 ऐड अप करके 9 होता है। आपकी आंखें खराब हो जाएंगी ओल्ड एज में। मार्स एंड सन इतना क्लैश करते हैं कि इट कैन इवन कॉज टेम्पररी ब्लाइंडनेस इन द ओल्ड एज और ब्लाइंडनेस इन द ओल्ड एज। अब जाके देखना, नेट पे देखना, कितने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट आसानी से नंबर 1 का नाम देते हैं टू पीपल हु हैव डोमिनेटेड बाय मार्स। You'll be surprised. 75-80%. छोटी सी बात है, आप 4, 5, 6, 7, 10 सालों में ना, you will start to see issues around the eyes. And it will go on and on. But at the end of the day, we're all about knowledge. Mars 9 होता है, Mars, okay. So now when you see that, आपका डेट ऑफ बर्थ 1/10/19 है, अगर आपका नाम 9 पे है या आपका डेट ऑफ बर्थ 9 है और आपका नाम 1 पे आ रहा है, 9 इज मार्स, मार्स मतलब मंगल। मार्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? मार्स की प्रॉपर्टी होती है वो बॉडी को अंदर से गर्म करता है, हीट देता है। वो जब हीट ट्रैवल करती है सरफेस ऑफ द स्किन में, स्किन को ड्राई कर देती है। वो जब ड्राई स्किन करते करते बॉडी लोशन लगाते लगाते अगर वो नहीं रुकती तो पाइल्स, अल्सर्स तक जाती है, और अगर फिर भी नहीं रुकती तो फ्लो ऑफ ब्लड या क्वालिटी ऑफ ब्लड तक जाती है, क्योंकि हीट तो बढ़ती जा रही है पानी। और आपने नाम भी दे दिया सन का जो ऑलरेडी हीट है, अब वो क्लैश करेगा। Okay. अगर आपका 9 होता और आपका नाम 6 पे होता, 3 पे होता, इट वुड हैव बीन फाइन। 5 पे भी होता है, वुड हैव बीन फाइन। बट आपका नाम 1 पे करने से ये इतना बॉडी हीट बढ़ जाएगा कि सबसे पहले सबसे वल्नरेबल पार्ट होता है क्या? पहले आईज होती है, फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। आपका सबसे पहले आंखें जाएंगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड इट डजंट वर्क, एंड वर्क्स ऑपोजिट। It was an eye opener for me in many aspects because I have absolutely never paid any attention to his specializations. I know I that. just knew he was a specialist. I left him for his work, and most of the courses and the reels and all that he's been putting up, except for a cursory interest, I have never focused on those. But after today's conversation, I'm sure I'm going to be pulled a lot into the reels and the podcasts and all that which are coming up. Chalo, there hai durust hai. At the end of the day, Yeah, the whole idea is benefits. that each of us should know something about it. Yeah. And then maybe we are safe. But my whole idea is I'm not a safe person to play. I take risks at the drop of the hat. So I am all about power, and power comes from money, in my belief, and very strong spiritual orientation, which we have as the country. We just need power enough of money in our hands now. We'll Okay, be fine. just a crazy thought. Maybe not even a part of this podcast, but this same method of calculation, would it also work on countries of individuals? A country, in a way, country yes. born on 15th August 1947, having a name INDIA. Do you think some sort of In a way, yes. When I used to say reads मैंने बात दी हुई है कि भाई आप इस देश को भारत क्यों नहीं करते? And when I did that, the reel, when was that? It was 2012 or 2014. When this new government came and all, the first 5 years they didn't even say Bharat. Because भारत चेंज करे, ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, वो जो लुटियंस गैंग था, जो भी था। बट द एंड ऑफ द डे व्हेन द ब्रिक्स केम, दे जस्ट इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एज भारत। जो बिना शोर मचाए भारत हो गया वो। देयर वाज नो इंडिया इन ब्रिक्स। जब G20 समिट यहाँ भी हुआ, ब्रिक्स हुआ, देयर वाज नो इंडिया, भारत अपने आप ही बन गया। हर जगह भारत तो धीरे धीरे भारत को शिफ्ट कर दिया, व्हिच मींस नाउ इट इज द पावर ऑफ वीनस। वीनस सबसे पहले क्या करता है? वीनस गिव्स यू सपोर्ट फ्रॉम द प्लैनेट्स व्हिच आर अबव यू, व्हिच मींस आपसे जहां आपकी जवाबदारी होगी वहां से सपोर्ट मिलता है। जवाबदारी आपकी अमेरिका से भी है, जवाबदारी आपकी रशिया से भी है, थोड़ी बहुत चाइना से भी है, जो आपसे बड़े हैं, और तो कोई है नहीं, बचा नहीं है, तो आपको सपोर्ट मिलता है। स्लोली यस, पर अगर आप बोलो कि आप देश का चार्ट बना लो एट द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड मंथ ईयर, ऑनेस्टली आई हैव नॉट मेड दैट। No, I'm just saying, is it possible? No, it's not. It is, but when I'm doing geopolitical commentary in my head, and I do a lot of it in my head, मैं रोज एक्चुअली इतना सुनता हूँ जियोपॉलिटिक्स, आप सोच भी नहीं सकते। मेरा रोज का काम आधा घंटा इज ओनली जियोपॉलिटिक्स सुनना। अपार्ट फ्रॉम रोज मैं काम करता हूँ सुबह, बट जियोपॉलिटिक्स में रोज सुनता हूँ, एंड जो भी मेरे को लगता है होने वाला वो हो ही जाता है। So then, लगता है होने वाला मतलब somewhere back of your mind you are doing your calculations and that is what you think. my calculation is not there in my conscious mind anymore. No, it's in my subconscious mind. It automatically is happening. It automatically is happening without me realizing it now. That's the point. अब obviously आप कुछ भी चीज करोगे, आप खाना बनाओगे तो शेफ नहीं बन जाते हो
You don't have to read a recipe book after some time. It just happens. हाथ पैर चलता है ना अपने आप. Yeah. और मेरा वैसे ही दिमाग चलता है. So, we had this thoughtful conversation. Honestly, एक point in time के बाद तो मुझे याद भी नहीं था कि हम कैमरे के सामने बैठे हैं. Because it was me and Dilip again, all over again. Being ourselves and being what we do, normally chat about the world and not about small stuff. But the long and short of it is that I'm so blessed that we could bring this together as a thought for people who will benefit from it. Number two, that there's a time that we are here where the time is so relevant कि हम जो बात सोच रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, मन में शांति है कि सही बात कर रहे हैं या सही बात सोच रहे हैं. वो शांति मिलना at my stage in my life perhaps I find it very difficult to achieve. But अगर हम आज ये बात कहीं और किसी और को सुनता है, कहीं और लेके जाती है, who knows? So God bless us all. I'll see you in my next podcast. That's revealed by Dr. Sachin Sharma. Have a good day. Jai Hind.